Okay, beta, good morning. On behalf of the Jurist Academy, I welcome you on our channels. Myself, Surinder Singh Bhardwaj. I did my law in the year 90, and after that, I appeared in IS Main with law subject, and I topped the written examination of a Punjab Judicial Service. I served as a judicial officer. Beta, you know that today the bumper vacancies in Haryana Judicial Service has come. The vacancies are approximate. Vacancies are 256 vacancies, and this vacancy never come in Haryana Judicial Service, and neither it will come. Okay? So the students who are preparing for the judicial service, it is the best chance for them to clear this exam. Okay? So beta, today we will discuss what should be your strategy to clear this exam. How you can clear this SCS judicial exam. So that will be our strategy and discussion, the topic for today. Okay? So beta, you know that Haryana Judicial Service exam is in three categories. It has been taken. First, there will be a preliminary examinations. Okay? In preliminary examinations, normally 125 questions are come, and every question has 4 marks. Okay? And from where these questions come, because whatever the syllabus in the main examinations, that is from where that subjects which are the main examinations, normally the questions are always come the questions from that exams. Okay? Main subjects. Now we will discuss what is the syllabus of the main examinations. Okay, beta? So, on approximately what questions normally come from the what subjects. Now go through that. So beta, first the civil law paper. So for the first we will discuss the preliminary examinations. So this is the civil law 1 paper, in which the Code of Civil Procedure, Punjab Court Act, Indian Contract Act, Indian Partnership Act, Sales of Goods Act, Specific Relief Act, Indian Evidence Act, Haryana Urban Control and Rent Eviction Act. Okay? So this is in paper 1. Okay? So then this is the paper 2, civil law, 200 marks is the main examinations, and this paper civil law 1 is also 200 marks. And in civil law 2, the Hindu law, Muslim law and law of registration and limitation. Okay? Questions आएंगे. First we will discuss the prelim, then we will discuss the main. And third one is this criminal law that include IPC, this criminal procedure code and the Indian Evidence Act. ठीक है? तो इसमें से बेटा जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले सीपीसी के अंदर अराउंड जो बेटा सीपीसी के अंदर 15 के आसपास बेटा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 15 और 20 के आसपास. फिर पंजाब कोर्ट्स एक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 8 to 10 क्वेश्चंस. प्रीलिम के अंदर टोटल क्वेश्चंस आर 125. ठीक है? जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 125. और फिर देन पार्टनरशिप 4 to 5, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 4 to 5, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 4 to 5, इंडियन एविडेंस अगेन 15 to 20, हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट, दिस इज ए रेंट एक्ट अराउंड 4 to 5, हिंदू लॉ around 8 to 10 questions, Mohammedan law
around 6 to 8 questions. Law of registrations, this is the approximately, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, but this is the approximately questions आते हैं. और then law of registrations, it's again 4 to 5 questions. IPC, it's around 12 to 20. CRPC again 12 to 20, और Indian Evidence Act again 12 to 20. So this is the range. इस तरीके से वाइफरकेट्स होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. इसमें एक दो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है. दिस इज द रेंज, और 125 क्वेश्चंस बनते हैं, और उन क्वेश्चंस के अंदर समटाइम 3 और 4 क्वेश्चंस जो है हरियाणा के अंदर रिलेटेड टू द हरियाणा, जो हरियाणा से इंपॉर्टेंस है जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. सो योर स्ट्रेटजी, आप तुम्हारी स्ट्रेटजी इसमें क्या होनी चाहिए. एक तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से 12 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 to 20, ठीक है, जैसे सीपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस हो गया. इन दीज सब्जेक्ट्स, this Indian Evidence, CPC and IPC, Criminal Procedure, Indian Evidence Act, तो ये टोटल तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80 to 90 के बीच में जो है क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है, अराउंड 75 to. तो इन स्पेशली इन सब्जेक्ट्स पे तुम्हें ज्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है. और बेटा क्योंकि नो वी विल डिस्कस इसमें से, क्योंकि नो द वैकेंसीज आर 256, ठीक है. इसमें से 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यू विल बी कॉल फॉर द मेन एग्जामिनेशंस, ठीक है. तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं हरियाणा के अंदर, दैट इज अराउंड 40,000, ठीक है, 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर होता है. तो इस बारी क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है, द स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीवियसली, they should directly prepare for the main examinations. उनके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द मेन, ठीक है. और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं जिन्होंने लॉ की है, ठीक है, they have not appeared in any competitions before this competitions, उनके लिए प्रीलिम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि जो प्रीलिम्स की मेरिट होगी अप्रोक्सीमेटली, अगर ये 500 का पेपर है, ठीक है, तो जो प्रीलिम की जनरल कैटेगरी की जो मेरिट्स होगी, दैट विल बी बिटवीन 217 to 280 के बीच कट ऑफ जाएगी, ठीक है. तो आपको क्योंकि पहले जो कट ऑफ होती थी वो 320 के आसपास होती थी, नो बिकॉज द वैकेंसीज आर मोर, सो द अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ होगी वो यहां पे जाएगी. इसलिए प्रीलिम जिन्होंने फर्स्ट टाइम देना है उनको भी प्रिपेयर अच्छी तरह करना चाहिए, ठीक है. सो द ज्यूरिस्ट अकेडमी आल्सो स्टार्ट इट्स बैच फ्रॉम द 21st ऑफ दिस, दैट विल बी रिलेटेड टू द प्रीलिम एग्जामिनेशंस ओनली. हम प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तैयारी कराएंगे सारे सब्जेक्ट्स, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइम टेस्ट सीरीज वी विल स्टार्ट फ्रॉम 21st ऑफ दिस जनवरी, ठीक है. Any person has any inquiry, they can call me. My number is 98140-84273. 98140-84273. No, we will discuss that. तो प्रीलिम जब क्लियर, तो जब आपने प्रीलिम दे दिया तो आप इमीडिएटली आपको तैयारी करनी चाहिए. यू शुड बी श्योर दैट यू विल बी क्लियर द एग्जामिनेशंस, ठीक है. वही लोग मेन में क्वालिफाई क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन जिनको पता होता है मेन प्रीलिम क्लियर हो गया, दे डिड नॉट वेट फॉर 8 to 10 या 15 डेज, वो वेट नहीं करते, अपनी मेन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. सो रिगार्डिंग द मेन एग्जामिनेशंस, इफ वी विल डिस्कस दिस फर्स्ट पेपर इज द सिविल लॉ पेपर, ठीक है. ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है. इसके अंदर जो है द 5 क्वेश्चंस विल कम, 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसके आगे 3-3 या 4-4 पार्ट होते हैं.
आपको SCS के अंदर ये ध्यान रखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कभी आपको ये होता है कि मैं ये 2-3 जो सेल्स ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ ये छोड़ देता हूं, पार्टनरशिप में छोड़ देता हूं, बट वहां पे कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए आपको जो एग्जामिनेशंस है उस पॉइंट से करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द तो मेन एग्जामिनेशंस के अंदर हरियाणा के अंदर दिस 200 मार्क्स का जो पेपर फर्स्ट सिविल लॉ मेन एग्जामिनेशंस के अंदर होता है, उसमें देयर आर द 5 क्वेश्चंस, और नॉर्मली 1 क्वेश्चन इज कम फ्रॉम द 1.5 क्वेश्चंस इज कम फ्रॉम द CPC and 1 questions normally come from the evidence act। ठीक है, सो हरियाणा जुडिशियल सर्विस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि वो मेन एग्जामिनेशंस के अंदर यहां पे भी एविडेंस आता है और दिस इज क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आता है। ठीक है, सिविल लॉ 1 के अंदर भी और सिविल लॉ 2 के अंदर भी। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी prepared very well the Indian Evidence Act। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छी तरह करना है। That's why it covers your 25% of your total syllabus अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पेपर्स के अंदर देन फिर दैट इज द सिविल लॉ 2। ठीक है, जो सिविल लॉ 2 पेपर्स का सिलेबस है इट इज एज कंपेयर टू द फर्स्ट पेपर कम है। ठीक है, तो आपको हिंदू लॉ, इट्स जो है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशंस। ठीक है, सो ये जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जब आपने हिंदू लॉ डिस्कशन करना है, व्हेन यू हैव टू डिस्कस द हिंदू लॉ, यू हैव टू बी डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ द आवर लाइक मनु स्मृति, लाइक नारद स्मृति, लाइक बृहस्पति स्मृति। ठीक है, आपने वो लॉ डिस्कस करना है। ठीक है, और जो अपना एक्ट है, जो एक्ट पे लॉ है वो तो है ही है, योर जो फिलॉसफी, योर डिस्कशन इज रिलेटेड टू दैट फिलॉसफी। ठीक है, और आपने दिस मैरिज, सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशंस में भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैरिज भी, और दिस इज डिवोर्स। ठीक है, तो आपने लेटेस्ट लॉ उसमें डिस्कशंस करना है, लैंडमार्क जजमेंट डिस्कशंस करने हैं, एंड सिमिलरली व्हेन वी डिस्कस द मोहम्मदन लॉ, जब हम मोहम्मदन लॉ डिस्कस करते हैं तो हमें जो अपना आंसर्स है नॉर्मली दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कुरान, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द सुन्ना और अहादीस बाय द प्रॉफेट मोहम्मद जी, एंड देन व्हाटएवर द लेटेस्ट लॉ, और जो क्वेश्चंस हिट करते हैं मेन एग्जामिनेशंस के अंदर, क्योंकि जैसे ट्रिपल तलाक अभी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ट्रिपल तलाक का अभी लॉ बना है। ठीक है, तो वो जो ट्रिपल तलाक इट्स नो ए ऑफेंस। ठीक है, इट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। Even the Supreme Court has given a judgment that no anticipatory bail can be granted at the time of triple talaq। ठीक है, सो जो लेटेस्ट लॉ होता है, क्वेश्चन चांसेस होते हैं वहां से हिट होने के। ठीक है, सो आपने जो लॉ करना है मोहम्मदन लॉ, सो दैट शुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट लॉ। ठीक है, इसमें मैरिज, ठीक है, उसके बाद डिवोर्स, देन डॉवर, सक्सेशन, विल, ठीक है, गिफ्ट, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड देन फिर लॉ फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। सो दिस इज द आल्सो दिस इज द सिलेबस ऑफ, इसमें 200 मार्क्स, और देन फिर दिस क्रिमिनल लॉ। एक बेटा याद रखना है तुमने, बिकॉज नो द कंपटीशन इज नॉट इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, कंपटीशन इज द इन मेन एग्जामिनेशन, because vacancies are 256, number of the candidates will be cleared around this is 2500, so उनमें से कंपटीशन है आप। ठीक है, इसलिए जो मेन है, मेन एग्जामिनेशंस, उस पे आपने ज्यादा जोर देना। ठीक है, देन बेटा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर देयर आर द 3 सब्जेक्ट्स, इंडियन पिनल कोड, दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड दिस इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस पेपर के अंदर ऑन दिस स्पेशली जो आपको
it's a most scoring paper out of these three because criminal law के अंदर IPC is scoring, ठीक है, क्योंकि आप वही पेपर स्कोर होता है जिसमें आप केस लॉ मेंशन कर सको, प्रोसीजर मेंशन कर सको, ठीक है. सो आईपीसी के अंदर इट्स ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सीआरपीसी के अंदर इज आल्सो इट्स ए बिकॉज कहीं इन्वेस्टिगेशंस आपको लेटेस्ट जजमेंट्स आपने लिखनी है तो ठीक है, चाहे इन्वेस्टिगेशंस आ गई, चाहे बेल पे हो गया, चाहे मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, जो भी टॉपिक्स है आपने लेटेस्ट जजमेंट्स यू हैव टू बी डिस्कस. एंड इंडियन एविडेंस एक्ट अगेन इज कम, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट इज आल्सो स्कोरिंग, बट यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन एविडेंस के रिगार्डिंग द क्वेश्चंस नॉर्मली कम द रेलेवेंसी पार्ट, कन्फेशंस पे हो गया, ठीक है, देन डाइंग डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मेन एग्जामिनेशंस, ठीक है, एक्सपर्ट विटनेस पे हो गया 45 उसके पास, देन फिर ऑरल एविडेंस, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस सेक्शन 59 60 हो गया. सो इस तरीके से बेटा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट इज आल्सो ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है. तो आपने एविडेंस एक्ट भी अच्छी तरह करना है, ठीक है, ये 200 मार्क्स. तो देन इज योर इंग्लिश. बेटा एक चीज और है भी जो कहते हैं जुडिशरी के अंदर लॉ में एक स्टेग्नेशन आ जाती है. एवरी पर्सन जो जिसकी अच्छी थोड़ी सी तैयारी है ही कैन स्कोर अप टू द 120 मार्क्स, वहां पे वो लिमिट हो जाती है. बट कहते हैं जो लैंग्वेज है वही आपको जज बनाती है. जुडिशरी के अंदर लैंग्वेज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर सिलेक्शंस, ठीक है. इसमें बेटा क्या होता है, हरियाणा पंजाब इन 2 स्टेट स्पेशली जिनकी इंग्लिश को अच्छी है उनकी हिंदी वीक होगी, ठीक है, चाहे हिंदी या पंजाबी उनकी डेफिनेटली वीक होगी. और जिनकी हिंदी पंजाबी अच्छी है उनकी इंग्लिश वीक होगी. ये दो एक तरीके से दिस इज बिकॉज इफ दे आर इन पंजाबी या हिंदी मीडियम से उनकी नेचुरली इंग्लिश वीक होगी. तो आपने दोनों में इंग्लिश और हिंदी में पंजाबी में दिस इज रिलेटेड टू हरियाणा, सो स्पेशली यू हैव टू बी स्कोर हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है. अगर अभी भी आप अगर मिस्टेक्स करते हो हिंदी के अंदर, ठीक है, तो जूरिस्ट अकेडमी विल आल्सो स्टार्ट अवर हिंदी लेक्चर फ्रॉम द मंडे से हम हिंदी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है. So and 21st of this we are starting the special the prelim batch. So बेटा लैंग्वेज के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है एसे 100 मार्क्स, ठीक है. तो जो एसे है समटाइम आप टॉपिक से बाहर हो जाते हो, ठीक है. एसे को स्टार्ट करना विद कोटेशन विद किसी अच्छी तरह से स्टार्ट करना, ठीक है. सो नॉर्मली इट्स ए 1000 वर्ड्स, उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए. सो ऐसे की जो अप्रोच है वो दैट शुड बी इफ यू हैव ए सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड अदर इन योर ग्रेजुएशंस, देन चूज द एसे फ्रॉम देयर. अदरवाइज चूज आल्सो करंट टॉपिक्स, ठीक है. सो जैसे आप एसे अभी से तैयार करना मटेरियल स्टार्ट कर लो, जैसे फार्मर्स के ऊपर एसे आएगा, ठीक है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है. ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ऐसे राइटिंग के, वी विल आल्सो डिस्कस द एसेस. सो ये जो है प्रेसी राइटिंग 25 मार्क्स और वर्ड्स एंड फ्रेजेस 20 एंड कंप्रीहेंशन 25 मार्क्स एंड करेक्शंस एंड 25 मार्क्स. ये तुम्हारा इंग्लिश का इसमें सिलेबस होता है, ठीक है. एंड देन फिर बेटा हिंदी, जो हिंदी है is also 100 marks. Translation of English passages into Hindi, ठीक है. इंग्लिश पैसेज आपको होगा, उसको आपको हिंदी ट्रांसलेशंस करना, ठीक है. तो हिंदी में आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपके पास हिंदी के अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है. तभी आप उसमें हिंदी में स्कोर आता है जब आप ट्रांसलेट करते हो. और सिमिलरली दिस फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हिंदी पैसेज इन द प्रोज पोएट्री इन द सेम गदाश वगैरह, ठीक है, प्रसंग से व्याख्या, ठीक है, वो चीजें 30 मार्क्स की. और दिस इज योर
और इसके अंदर बेटा हिंदी के अंदर जो नॉर्मली आपको हिंदी का दिस इज, इसमें बेटे जो पहले 20 मार्क्स का 2013 के अंदर नो वी विल डिस्कस द 2019 पेपर ऑफ ए हिंदी, ठीक है। इसमें 20 मार्क्स का जो आया था दैट इज प्रसंग, इसमें करना था निम्नलिखित गद्दाश का हिंदी में अनुवाद कर, ठीक है। इंग्लिश पैसेज से आपने जो हिंदी में कर दैट इज 20 मार्क्स। उसके बाद फिर हिंदी में ही टफ हिंदी के अंदर एक आपको पैसेज दिया होता है, उसमें से आपको इजी हिंदी के अंदर सिंपल वे में लिखना होता है, दैट इज आल्सो 15 मार्क्स। फिर निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए, इससे 2 गद्यांश होते हैं 7.5 मार्क्स के अंदर, जिसको प्रसंग से आपको व्याख्या करनी होती है। देन बेटा फिर शुद्ध अशुद्ध आते हैं 5 मार्क्स के। फिर उसके बाद निम्न कुछ वाक्यार्थ अशुद्ध लिखे होते हैं, ठीक है, करेक्शंस करनी होती है हिंदी के अंदर ही आपको, उसमें से 5 मार्क्स की आती है। देन फिर बेटा मुहावरे 5 मार्क्स, और देन फिर निम्नलिखित जो ऐसे राइटिंग है वो 30 मार्क्स का आता है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो 30 मार्क्स इज रिलेटेड टू हिंदी के अंदर ऐसे, तो उसमें से फिर आपको 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू जो आपकी 200 मार्क्स की है, ठीक है। इंटरव्यूज के अंदर आपको जो लॉ है आपका, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है, और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे तो रिटन की वो नॉलेज आपसे ले लेते हैं, उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर जो आपका आप यू शुड नॉट बी बायस, ठीक है। आपकी जो क्वालिटीज चेक की जाती है, वेदर यू आर ए that come into that criteria of a judges, ठीक है। उसमें आपकी हो सकता है आपको करंट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ ले, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो आपको एक सेट करने के लिए होते हैं, कंफर्टेबल करने के लिए, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो वो आपको एक स्टार्टिंग के अंदर आपको एक इजी जोन के अंदर आपको करना होता है, ठीक है। समटाइम अगर आप वही क्वेश्चन ही सेटिस्फैक्टरी नहीं दे सके, ठीक है, आप अपने बारे में नहीं बता सके, आप अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बता सके, इफ यू कैन नॉट टेल अबाउट योर फैमिली, योर विलेज, योर सिटी, योर यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप वही चुप कर जाते हैं, वो दैट इज मोर डेंजरस। अगर आप लॉ क्वेश्चंस पे चुप कर जाते हैं, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज नहीं होगी उस पॉइंट पे, आपका रिप्लाई नहीं आया, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन द क्वेश्चन इज पुट रिगार्डिंग विच यू नो, रिगार्डिंग योरसेल्फ, योर एग्जामिनेशन, योर यूनिवर्सिटी, योर सिटी, योर विलेज, देन इट इज वेरी बैड इंप्रेशंस ऑफ यूर ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो आपने बेटा उस तरीके से ये जो है एग्जामिनेशंस है, और जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होगा नॉर्मली आप ये सोच के चलो दैट विल बी बिटवीन द 15 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है। 15 मार्च और 15 अप्रैल सोच के चलो। अगर लेट होता है तो बहुत अच्छा है, बट आपको एक अप्रोक्सीमेटली इस टाइम के अंदर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होगा, ठीक है। तो बेटा ऑल द बेस्ट। So we will start our this especially for the prelim batch from the 21st of this January. ठीक है, thank you. इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 0.5 की होती है। मतलब जैसे आपने 5 क्वेश्चंस गलत कर लिए तो आपके 1 क्वेश्चंस के मार्क्स जाएंगे।